اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ آپ کا دشمن وہ دشمن جو آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کی مال کا دشمن ہے، آپ کی عزت آبرو کا دشمن ہے، آپ پر وہ تعویذات وغیرہ کرتا ہے یا وہ آپ پر کالا علم شیطانی عملیات کرتا ہے یا کسی سے کرواتا ہے، آپ کو اس بات پر یقین ہے اور آپ مسلسل اس کی ان تکالیف اور ان پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو آج میں آپ کو ایسا پرتاثیر عمل فوراً اثر کرنے والا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر آپ نے سمجھ کر اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مخالفین جو آپ پر زبان درازی کرتے ہیں، جو آپ پر اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں جن سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یا اس طرح کے وہ عملیات شیطانی کرتے ہیں، مثلا آپ کا کاروبار ہے یا پھر اور کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اگر آپ کی زندگی کے اندر دخل اندازی کی ہے اور بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں آپ کو، تو آپ پھر یہ 3 دن کا یہ عمل ہے، آپ اس 3 دن عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کے مخالفین کی زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، اور وہ آپ سے ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ آسان لفظوں میں کہ آپ کے ساتھ جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے نا، ان کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ واپس سب آنا شروع ہو گیا۔ ایسا میں آپ کو پرتاثیر عمل دینے جا رہا ہوں، اس میں جو ہی شرط ہے وہی عمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس چیز سے آپ نے بچنا ہے اور اسی چیز پہ ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب احتیاط بھی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے اس سے احتیاط کیسے کرنی ہے۔ مثلا آپ نے بدبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا، میں اکثر کہتا ہوں کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ ایسی چیز جو جسم سے بدبو آئے، ہاتھوں سے بدبو آئے، تو آپ نے اس چیز کا استعمال نہیں کرنا۔ اب آپ نے پیاز ہی لینا ہے اور پیاز پہ ہی عمل کرنا ہے۔ دیکھیے آپ نے پیاز کسی سے کٹوا لے، خود نہ کاٹے یا خود کاٹ لے، جیسے آپ کا دل کرتا ہے، پیاز آپ نے لینا ہے تو اس پیاز کو آپ نے جو ان سے ہے وہ اس طرح کٹ کرنا ہے، اس طرح آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ آپ کا جو ان سے ہے اس کے ہاتھ نہ لگے تاکہ آپ کے ہاتھوں سے بدبو نہ آئے۔ اب آپ نے ایک پیاز کے 4 پیس کر لینے ہیں اور چاروں پیس آپ نے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ کس طریقے کے ساتھ؟ ایک آپ نے پیاز کا پیس اپنے سامنے رکھنا ہے، دوسرا پیس آپ نے اپنے دائیں سائڈ پہ رکھنا ہے، تیسرا پیس آپ نے اپنی بائیں سائڈ پہ رکھنا ہے، اور چوتھا پیس جو ان سے وہ آپ نے اپنی پیچھے والی سائڈ پہ رکھنا ہے۔ یوں آپ نے چاروں طرف پیاز رکھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل کا حصہ ہے، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آثار لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو آثار لگانا آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگانا آتا تو پھر اسی چینل پر آیت الکرسی کے آثار کا وظیفہ 4-5 دن ابھی ہوئے ویڈیو اپلوڈ کیے، وہ آپ دیکھ لیں جا کے آیت الکرسی کا آثار لگانے کا طریقہ، یا پھر آپ کو جو آثار لگانا آتا ہے وہ آپ آثار لگا لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے اپنی پڑھائی کو مکمل کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے سامنے والے پہ دم کرنا ہے، پھر اپنی دائیں والی سائڈ پہ دم کرنا ہے جو پیاز پڑا ہے، پھر بائیں سائڈ پہ، پھر پیچھے والی سائڈ پہ۔ اسی طرح آپ نے چاروں پیازوں کو پھر یعنی کہ آپ نے کسی کپڑے کے یا کسی کاغذ وغیرہ کا سہارا لے کے آپ نے ان کو اٹھا لینا ہے، چھاپر وغیرہ میں ڈال دینا ہے، اور آپ نے باہر چلے جانا ہے، گھر کی حدود سے باہر۔ عمل تو آپ گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے جب پھینکنا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ ہی آپ نے دشمن کے گھر وال منہ کر کے آپ نے جون سا ہے وہ آپ نے ایک پیاز پھینکنا ہے اپنے سامنے کی دائیں سائڈ پہ، پھر اپنی دائیں سائڈ پہ، پھر بائیں سائڈ پہ، پھر پیچھے والی سائڈ پہ۔ یہاں پہ اصل عمل ہے کہ آپ نے جب پیاز پھینکنا اس وقت آپ نے دشمن کا تصور باندھ لینا ہے، نام لے سکتے تو نام لے لیں، فلاں بن فلاں کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، اس کی زبان بندی کے لیے یا جو بھی ہے، تو آپ نے وہ جو ان سے ہے وہ اصل چیز ہے جب پھینکنا ہے تو اس وقت آپ کی مرضی، آپ ایسے پھینک دیں، ایسے پھینک دیں، جیسے بھی آپ نے، لیکن جتنے مطلب زور کے ساتھ، جتنی آپ جستجو کے ساتھ، جتنا غصے کے ساتھ کہہ لیجیے آسان لفظ میں، جو آپ نے ہوا ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو جتنا آپ غصے کے ساتھ یہ عمل کریں گے، مطلب پھینکیں گے، تو یہ اسی طرح جا کے اپنا کام کرے گا۔ یہ 3 دن کا عمل ہے،
बिल्कुल आसान है, बस आपने गोश्त का एहतियात करना है कि बीफ आपने नहीं, इससे बड़े से आपने कच्चा प्याज लहसुन अदरक या फिर कह लीजिए अंडा वगैरह मछली वगैरह इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है। तो सोदक का परहेज कर लें 3 दिन, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर मरीज़ रजत के मरीज़ तभी बनते हैं जो सोदक का परहेज नहीं करते। और उसके बाद ये है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अमल के दौरान, अमल के बाद, आगे पीछे आप दरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। इस रूहानी वजीफे की इजाज़त के लिए आप 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिख दीजिए। और दरूद शरीफ की खास दुआ में आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मजीद हमारे वज़ाइफ सुनना चाहते हैं इसी मौजू पर, तो आप इसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस्लामिक टीचर हमदमी। और अगर आप रिस्क के मुतालिक, कारोबार में बरकत के मुतालिक आप वज़ाइफ सुनना चाहते तो फिर मेरा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, उसको आप जाकर देखें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बड़े बड़े रूहानी वज़ाइफ मिलेंगे। अब आपने इस अमल को जोहर के वक्त करना है, यानी कि जोहर से पहले भी किया जा सकता है, ज़्यादा होता है सख्त, लेकिन अगर जोहर के बाद करेंगे तो जितना वक्त गुजर जाएगा उतना बेहतर है। अगर आपने जल्दी बदला लेना है और ज़्यादा लेना है, आप जो चीज़ उनको आपकी तरफ आई वापस भेजना चाहते हैं, आप वो कहते हैं ना जी कि आसान लफ्ज़ों में कि वो दुश्मन मेरा जो उनसे है वो हर लिहाज से, बंदे की ज़ाहिर बात है दुश्मन के बारे में कोई अच्छे अल्फाज तो नहीं होते, तो बार बार उसी बात को एतराफ़ करना या उसी बात को दोहराना मुनासिब भी नहीं है। तो आपने इस अमल को जोर से पहले करते हैं तो फिर ज़्यादा यानी कि ये तेज़ हो जाएगा। और जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आप करते हैं तो फिर नॉर्मल होगा, लेकिन होगा इतना कि आपको जितनी ज़रूरत है। आमिरीन हज़रात जोहर से पहले करते हैं क्योंकि इसके आसार भी मजबूत होते हैं, फिर इसकी काट पलट का भी एहतियात करना होता है। तो आप जो उनसे मशवरा है मेरा आपको, क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया है बातों बातों में, बस वो आ गया ज़हन में, मैंने बता दिया, लेकिन अब आपने जोर से पहले ना करने बैठ जाना, तो आपने जोर के बाद ही करना है। आपको इस अमल का टाइम जो दिया जा रहा है वो है जोर के बाद। तो आप अगर जोर के बाद नहीं कर सकते तो फिर आप ना कीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं जी, बार बार तंग करते हैं, कॉल फोन ये वो जी, कि हम इससे अलावा कुछ टाइम बता दें। कुछ अमलियात ऐसे होते हैं जिनका फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पर ही किया जा सकता है। कर सकते हैं तो कर लें। 3 दिन का ये अमल है, ये नहीं कि आपने 1 दिन कर लिया 2 दिन आपने नहीं किया। तो आपने ये कोशिश करनी है कि 3 दिन ही करना है अगर इसको शुरू करना है तो, वरना रजत के आपके साथ मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। अब आपने करना क्या है जी, आपने जोर की नमाज के बाद बैठ जाना है, हसार अपना लगा लेना है। ठीक है, हसार लगाने के बाद आपने दुश्मन की तस्वीर के सामने तसव्वुर बांधना है, यानी कि तस्वीर से तसव्वुर, आपने फला बिन फला, मैं मिसाल देता हूँ, आप मतलब इस तरह नियत करना चाहते हैं कि मैं फला बिन फला के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ या अमल को करने जा रही हूँ। ख़वातीन और मर्द कर सकते हैं इस अमल को, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रजत के ज़्यादा मामलात नहीं है। अगर आप मुकम्मल जो मैंने पीछे शराइत बताई उन पे अमल कर लेते हैं। मैं फला बिन फला जो उनसे है के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ या अमल को करने जा रही हूँ। ठीक है जी, ये मसला मसाइल है, तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें उसने मेरी तरफ भेजी हैं मैं उनको उसी परवाज से वापस भेजना चाहता हूँ या भेजना चाहती हूँ। ठीक है जी, तो मेरी मदद फरमाइए, मुअक्कलात के ज़रिए इनको वापस भेजा जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में आपने ये नियत की दुआ करनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप रिजल्ट आपके सामने होगा 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, तो नापाकी की हालत में आप नहीं कर सकते। अमल के लिए जब भी बैठना है बावुज़ू होकर बैठना है, ये नूरानी अमल है। ठीक है, शैतानी अमल तो है नहीं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके शैतान, वो जो कहते हैं ना जी कि शैतानी अमलियात के ज़रिए जिस बंदे ने आप पर वार किया है, तो आप तो उस पर काला इल्म नहीं कर रहे ना, काला जादू आप तो नहीं कर रहे। जो उसने आप पर भेजा था, जो उसने आप पर किया था, वो आपने भेज दिया। मैंने सिर्फ आपको तरीका समझाया, तो तकरीबन 9 मिनट 24-25 सेकंड की वीडियो हो गई है, सिर्फ तरीका समझाया है। ठीक है ना जी, तो अगर इसके फजाइल बयान किए जाए इस अमल की और हकीकत बयान की जाए, तकरीबन 40-45 मिनट की कम अज कम वीडियो बने। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको तरीका समझा दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जिनके वजूद के अंदर यानी कि जिन्नात आ गए हैं, जिनके असरात आ गए इतने ज्यादा। क्या है जी, मैंने फलां वजीफा किया था जी,
फला मैंने अमल किया था जी। इतने रजत के मामलात, यकीन माने बंदे चंगा भला ठीक ठाक बिजनेस होता है, कारोबार होता है, और जवाल पजीर कर मकरूज, हर चीज बर्बाद, घर का पूरा निजाम किया जी, किसी ने वजीफा दे दिया जी, उसने बताया ही नहीं कि इसके रजत के मामलात कैसे हो सकते हैं, कैसे करना है, किस हालत में करना है, किस हालत में नहीं करना। लोग तो इतने दरवेश लोग हैं, मैं तो उनको क्या कहूँ, कहते हैं नापाकी में भी आप कर लेंगे। अब मुझे बताया यार रहमानों के मुवक्कलात है 4, ठीक है जी, उनके नीचे ये 4 मुवक्कलात सरदार है, इनके नीचे 70 मुवक्कलात है। इमाम गजाली फरमाते हैं उनके ऊपर चारों की सरदारी है फरिश्तों की। आपने तो फरिश्तों के नाम भी लिखे हैं बिल तरतीब। अब एक अल्लाह के नाम में इतनी ताकत है, बंदा कहता है या रहमान पढ़ी जो, अब वो नापाकी में औरत पढ़ रही है, पलीती में पढ़ रही, तो बताओ किधर को बात चलेगी। इशारा किया है नापाकी की हालत में आप कोई भी वजीफा ना करें, ठीक है। दुआएं पढ़ते हैं या जो भी आप करते हैं वो एक अलग चीज है। बतौर वजीफा जब आप वजीफा करते हैं, उस वजीफे के मुवक्कलात, उस आयत के, उस अमल के मुवक्कलात हाजिर होते हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ते भी आते हैं और मुवक्कलात भी आते हैं। मैंने मिसाल दी है, बात समझ में आ जाए। ये कुरानी अमल है। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, ये आपने आया मुबारका पढ़नी है। वारसला अलैहिम, ये सूरह फील की है, कुरान पाक का आखिरी सिपारा है, उसमें सूरह फील है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, ये इतनी सी आयत मुबारक है, ये आपने पढ़नी है। इसका इतना कमाल है ना जी, अल्लाह ताला ने जब हुक्म फरमाया तो वो अबाबील अपने मुंह के अंदर छोटी छोटी कंकरियां लेकर आए, और वो हाथी जो उनसे थे वो जनाब साहब उनका 0-0 हो गया। समझ आ रही है ना आपको? तो ये आपका दुश्मन भी 0-0 हो जाएगा। इशारतन बात की है, समझ जाए आप। ये एक कंकरी से काम लेना आपने। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील। अच्छा, अगर आपको प्याज का मसला है, प्याज आप नहीं कर सकते क्योंकि देखने वाले बड़े होते हैं, घर में इर्द गिर्द माहौल बड़ा होता है, तो आप 4 कंकरियां भी ले सकते हैं, ठीक है। इस 4 कंकरियों के लिए शर्त ये है कि आपने चुरस्ते से लेनी है, यानी कि चुरस्ता कहते हैं उसे, कि चारों तरफ रास्ता जाता हो, ठीक है जी। तो वहां से आप जो से चुरस्ते से एक एक कंकरी, आप चारों रस्तों से आप एक एक कंकरी उठा ले और आप वो इसी तरह रख के, तो सेम जो मैंने तरीका बताया सेम टू सेम आप उसी तरह भी कर सकते हैं। लेकिन जो शरायत बताई है उन पे आप अमल करना है। खुदारा आप वज़ाइफ करते हैं और आप अमल नहीं करते शरायत पर, तो आपको नुकसानात फिर सामना करना पड़ता है। तो मैं इसलिए तसल्ली से आपको समझाता हूँ कि यार आप नुकसानात से बच जाए। आप आने वाले वो जो मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, जो शैतानी अमलियात का पलटाव है, वो सारी चीज़ों से आप हिफाजत में रहें। फिर भी आप अपने आप को मुकम्मल हिफाजत में रखना चाहते हैं तो आखिर में जाते जाते मैं आपको तोहफा दे देता हूँ। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम आखिर। कहने का मतलब यह है कि 21 मरतबा जब आपकी आंख खुले, उठते ही बगैर वजू के किसी, बस आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और रात को सोते वक्त आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। बस आप समझे हसार में आ गए, ठीक है ना जी। फिर आपका दुश्मन आपके सामने बैठ के भी आप पे अमल करता रहे। तो अगर अंदर का असहार लगाया तो पानी पे दम करके पी ले, चेहरे पे आप पानी का मसाज कर लें, अपना असहार कर लें। इससे मजबूत असहार मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आप ये असहार भी लगाया करें, और अगर इस अमल को करना चाहते हैं तो आप अमल भी करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी भी देगा। अगर आपने शरायत पर अमल की तो आपको किसी किस्म का रजत का मसला भी नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।